Hi guys, this is Tikshita and welcome back to my YouTube channel. And this video was requested by some of my juniors, and I thought it was a great idea to actually make this kind of a video which will help a lot of people. So first of all, my sunset lamp. I actually filmed this video 2 days back, but उसमें audio glitch आ गया and वो पूरी वीडियो में कुछ भी ढंग से सुनाई नहीं दे रहा. So I was like, let's just film it once again. And there are कुछ pointers जो मेरे को बाद में याद आए थे, तो we'll do that now. If there is a little bit of AC की आवाज़, ignore that. इतना तो फिर भी चलेगा, जितना उसमें audio glitch आया था वो मैं नहीं कर सकती. There was some problem in my mic and yeah. So if you're not someone who's looking for guidance or anything कि second year में कैसे manage करना है या how I manage stuff along with my studies, you can ignore. Otherwise, please keep watching. So I decided to mention a detailed video because second year of BTech is very important. There are a lot of things that you have to do and it takes a lot of management. And वो सब करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. I actually enjoyed my entire first year. I did not study at all. I actually started studying during March. जब मेरा सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म होने वाला था, सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म होने में सिर्फ 1 मंथ था, तब मैंने एक्चुअली कुछ ना कुछ कोडिंग रिलेटेड पढ़ना शुरू करा. आई डिड हैव अ कोडिंग एक्सपीरियंस बिफोर कॉलेज स्टार्टेड एज वेल. मैं 2 साल से कोडिंग करी थी एंड नॉट जस्ट स्कूल वाली कोडिंग, समथिंग एक्स्ट्रा एज वेल. But still there is a lot of practice, there are a lot of concepts जो कॉलेज में नए आते हैं and you have to do them. So first thing first is maintaining your CGPA. शुरू के years में CGPA maintain करना is very easy and there are a lot of opportunities which prefer people who have a good academic background. So there were a lot of opportunities जो मेरी इस वजह से मिस हुई है because my experience, my knowledge was good. But I did not have an academic background which was that strong. School तक मेरा academic background बहुत strong था. College के पहले semester में I had college के first year में I had my GPA around 7. So that was not a very good impression. And इस वजह से there were a lot of opportunities which I missed out on and which went to people who probably might not have worked this hard. I'm not saying they did not deserve it, but definitely the extracurriculars that I did were way too much in comparison to them and still I did not get those opportunities just because मेरा CGPA record सही नहीं था. So first thing first, maintain your CGPA record. It is very 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 important. Second thing is DSA. This is like one of the necessities. If you're looking for anything in software, if you're looking for like a Women Technica Scholarship, which is also known as Generation Google Scholarship now, if you're looking in, no matter what opportunity you get these days, every opportunity has a coding round in the beginning and उसके लिए तुम्हारा DSA strong होना बहुत important है because तुम आगे जाके कुछ भी सॉफ्टवेयर में करोगे तो it depends on whether you know DSA or not. तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं and that is why maintaining like a good practice of DSA is very important. But at the same time you have to show अपना resume as equal to how much knowledge you have of DSA. नॉट सेम कि इक्वल, बट कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स दिखने चाहिए तो उतनी मेहनत कहीं और भी लगेगी. सो इन ऑर्डर टू शो लाइक गुड प्रोजेक्ट्स इन योर रेज्यूमे तुम्हें कोई एक टेक स्टैक पे पिक करना है. देर आर अ लॉट ऑफ टेक स्टैक्स अवेलेबल. देर इज़ साइबर सिक्योरिटी, देर इज़ MLAI, देर इज़ डेटा साइंस. वो MLAI के साथ कहीं ना कहीं आई गेस आती है, कनेक्ट होती है पाइथन के थ्रू. देन देर इज़ वेब डेवलपमेंट, देर इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी, AR/VR चलो साथ में ले लो. देर इज़ IoT, देर माइट बी ब्लॉकचेन. ऐसे बहुत बहुत सारे डोमेन्स हैं. मैंने बिल्कुल इतने से नाम नहीं है, अवेलेबल इतने सारे हैं. सो पिक अप वन डोमेन दैट यू रियली वांट टू डू एंड ट्राई टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू दैट डोमेन. इफ़ यू पिक like multiple domains together, you would not be able to focus on even one of them because every domain requires a lot of effort. सिर्फ जैसे DSA में बहुत एफर्ट है, तुम्हें DSA तो करना ही करना है, तो उसके साथ सिर्फ एक डोमेन पिक करो और उस एक डोमेन पे पूरा अच्छे से फोकस डालो. जैसे कि मैंने अपने सेकेंड ईयर में अराउंड 7-8 प्रोजेक्ट्स बनाए, बट हर प्रोजेक्ट AR/VR का ही था या उसी से लिंक्ड कुछ था. तो जब तक मैंने AR/VR में इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो गई थी तब तक मैं वही कर रही थी. तो मैं सिर्फ AR/VR ही कर रही थी ना, तो वो एक ही डोमेन था. तो ये नहीं था कि मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया पढ़ना है. मैं कोई नई लाइब्रेरीज डिस्कवर कर रही हूँ और मैं उसी डोमेन में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रही हूँ.
एंड विद स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट्स का लेवल बढ़ता जाता है. तो गेम डेवलपमेंट इज लिंक्ड टू AR/VR बिकॉज मैं दोनों चीज़ें यूनिटी में कर रही थी. तो आई यूज टू स्विच बिटवीन AR गेम डेवलपमेंट, AR गेम डेवलपमेंट. जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मैं पिक कर रही थी उसमें भी वही चीज़ें आ रही थी कि मुझे कुछ अभी नए पे फोकस ना करना पड़े, डोमेन साइड एक ही रहे लेकिन उसमें मल्टीपल वैराइटीज़ दिख जाए. एंड ऐसे में साथ में सिर्फ DSA पढ़ने को था. देर आर टाइम्स जब तुम्हारा DSA पढ़ने को मन नहीं करेगा बिकॉज उसमें यू कैन नॉट सी द रिजल्ट राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज. डेवलपमेंट में तुम्हें कुछ प्रोडक्ट बनते हुए दिखता है तो वो प्रोडक्ट बनाने में फोकस चला जाता है एंड इस चक्कर में DSA की प्रैक्टिस कम हो जाती है. वो कभी नहीं करना है. कभी ऐसा हो कि डेवलपमेंट को तुम थोड़ी देर के लिए रोक लो, DSA को रोकना नहीं है. एंड इट इज़ डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी. बहुत मुश्किल मुझे भी हो सकती है. आई इमेंसली लव कोडिंग बट तब भी मुझे मुश्किल होती थी कि यार थोड़ा बहुत यार मन नहीं कर रहा कोड करने का. कभी कोई बहाना कि अभी ये करना अभी वो करना है. बट यू डू नॉट हैव टू लीव योर प्रैक्टिस. नहीं तो वो एक बार आदत छूटी की ना वापस से पिक करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मुश्किल होती है. तो वो कोडिंग की आदत नहीं छोड़नी है. देयर वर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. अगर मैंने कोडिंग की आदत नहीं छोड़ी होती और अगर मैंने डेवलपमेंट पे थोड़ा कम फोकस किया होता तो मुझे वो पहले मिल जाती. सो ये तो बात हुई DSA एंड अपना डोमेन स्पेसिफिक. DSA में भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो एवरी कॉन्सेप्ट. ऐसा नहीं करना कि हमने प्रैक्टिस 100 बार करी है लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे ग्राफ्स का कोई एक्सप्लेनेशन या कोई नया क्वेश्चन आए तो मैं उस क्वेश्चन को टैकल कर पाऊँ. तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें कॉन्सेप्ट की डीप स्टडी पता हो कि अगर मैंने MCQ देखी है तो मुझे पता है कि यहाँ पे यही ऑप्शन होगा बिकॉज इन ऑप्शंस में चीज़ गलत हो जाएगी. तो वो ये भी करना है कि सिर्फ कंपाइलर स्पेसिफिक कोडिंग नहीं करो क्योंकि कंपाइलर से तुम्हें पता लग जाता है कि गलती हुई है, एरर आया है. वो डीबग करते करते तो आदत पड़ेगी. बट अगर डीबगिंग नहीं है तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम बिना कंपाइलर की भी चीज़ें कर सकते हो. वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर जैसे कमिंग अगेन टू जनरेशन गूगल स्कॉलरशिप, अगर तुम उसका कोई राउंड ले लोगे तो वहाँ पे कंपाइलर नहीं है. तुम्हें डायरेक्टली कोड टाइप करना है, तुम्हें डायरेक्टली कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देना है जहाँ पे एरर क्वेश्चंस होंगे. तो अगर तुम्हें डीबगिंग नहीं आती है, वो सिर्फ तुम्हारा कंपाइलर बताता है कि तुम क्या गलत करो, तो वहाँ पे तुम रह जाओ. तो कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. डीप स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स हो और उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस हो, ऐसे करना चाहिए. तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड गो फॉर समथिंग विच हैज़ डंडा ओवर योर हेड. गो फॉर अ कोर्स, गो फॉर लाइक एक सोसाइटी का प्रोग्राम की 30 डे प्रोग्राम में हम 30 क्वेश्चन और ऐसे करेंगे. ऐसे में बहुत हेल्प मिलती है. बट टू बी ऑनेस्ट मैंने कोर्स प्रेफर किया था बिकॉज मेरी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग नहीं थी. तो वो कभी कभी होता था कि मैं ढीली पड़ जाती थी. सिंस आई हैड पेड फॉर अ कोर्स आई न्यू आई हैड टू डू इट बिकॉज इट वॉज माई पेरेंट्स मनी. मैं वो वेस्ट नहीं कर सकती थी. तो उस चक्कर में प्रैक्टिस डेली रही थी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस डेली एंड यू कैन प्लान कि तुम खुद को किस तरह वो करवाओगे. तो ये तो बात हुई DSA एंड देन योर रेज्यूमे रिलेटेड एंड कॉलेज की CGPA मेंटेन करना. अब ये सब चीज़ें करने के लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम मैनेज करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो ये नहीं कह रही कि बिल्कुल फन बंद कर दो. देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल प्रायोरिटाइज योर वर्क ओवर फ्रेंडशिप्स, ओवर घूमने जाना, ओवर थोड़ा फन. एंड इट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट. अभी चलो ये भी है कि माइट बी की कॉलेज खुल, माइट बी, नो आइडिया. इफ़ खुल जाते हैं तो डू नॉट फोकस ऑन द फन, डू नॉट फोकस ऑन मीटिंग फ्रेंड्स बिकॉज सेकेंड ईयर है. तुमने फर्स्ट ईयर में बैरली किसी को देखा है तो वो चीज़ मन करेगा घूमने का, मन करेगा कि टाइम वेस्ट करे. बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम वो अपना पूरा साल बहुत अच्छे से डिवाइड करके मैनेज करके काम करो. ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल ही ये किया था. बीच में उस टाइम भी कॉलेज थोड़ा ऐसा था कि हम लोग विज़िट करते रहते थे. एक आधी टाइम में एक आधी टाइम नहीं, मतलब मैं चलो 5-6 बार विज़िट कर रही हूँ कॉलेज. बीच बीच में मैं अपने फ्रेंड्स से भी बात करती थी, मैं टाइम वेस्ट करती थी. मतलब मैंने मेकअप पे टाइम निकाला है, मैंने यूट्यूब पे टाइम निकाला है, मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे टाइम निकाला. मैंने इसलिए किया कि मैं फेस्टिवल में अपना बैठ के कोड कर गया और मैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, वो सब नहीं है. वहाँ पे तुम टाइम निकाल सकते हो. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो तुम्हारे पास दूसरा टाइम है तुम उसको ऐसे यूटिलाइज़ करो कि तुम्हें फेस्टिवल्स के टाइम पे तुम्हें किसी के साथ घूमने जाने के लिए एक बार ये ना सोचना पड़े कि यार अभी पढ़ना था या ये करना था, ये काम रह गया, वो काम रह गया.
तो इस तरह मैनेज होना चाहिए कि निकलने में दिक्कत ना, या लेकिन ये भी नहीं करना कि पूरा टाइम ही फ़न करते हुए पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। बहुत ही स्ट्रिक्ट प्लानिंग रिक्वायर्ड है, एंड एक प्लानिंग करना और एक रूटीन पाना इज़ नॉट ईजी। क्लियरली बता रही हूँ, मेरे लिए भी ईजी नहीं है यार। मेरे को मैनेजमेंट की शुरू से आदत है, मैंने शुरू से हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर को साथ रखा है। स्टिल मैनेज करना मेरे लिए बहुत टफ होता था बीच बीच में। एंड डो नॉट टेक मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ, जो कि मैंने बहुत बार किया है। देर आर अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ, देर आर अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू कैन डू वेरी वेल इन, बट डू यू हैव द टाइम। अगर तुम वो अपॉर्चुनिटी को हाँ करते हो, तुम अपना ये सब कामों पे फोकस कर पाओगे। DSA, कॉलेज, डोमेन स्पेसिफिक जो भी तुम्हारा काम चल रहा है, इस पे फोकस करने के बाद थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने के बाद तुम्हारे पास टाइम बचता है कि तुम वो अपॉर्चुनिटी पिक कर सकते हो, डेफिनेटली पिक इट। बट इफ़ यू कैन नॉट, एंड यू रियली वांट टू बट यू कैन नॉट, से नो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू से नो, एंड मना करो कि यू डू नॉट हैव द टाइम। एंड ऐसे नहीं कि तुम सीधा उनके रूट बोलो कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अगर तो कोई ऐसी ऑप्शनटी जो सामने से आ रही है, तो just say hi, I do not have the bandwidth to be working on something because I have a lot going on my plate, and I would not be able to do it. Simple. ऐसे बोल के मना करो, बट प्लीज़ मेक श्योर कि तुमने जो जो पिक किया है तुम्हारे पास वो करने का टाइम है। यू आर नॉट ओवर स्ट्रेसिंग योर सेल्फ, बिकॉज वो ओवर बर्डन करने पे बर्नआउट होगा और कुछ नहीं होगा। तुम्हें स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है, वो स्मार्टली प्लान करके हार्ड वर्क करो। ऐसा नहीं कि तुम पागल की तरह काम करो और कुछ फिर उसका बेनिफिट ना मिले तो फ़ायदा नहीं है। तो बहुत स्मार्टली चीज़ें प्लान करो, लेकिन वो स्मार्टली जो प्लान करो उस पर पूरा अच्छे से एफर्ट दो। दिस वॉज अबाउट हाउ टू बैलेंस एंड स्टफ। द लास्ट थिंग दैट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन को मेंटेन रखना एंड लिंक्डइन पे अच्छे से एक्टिव रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो तुम्हारे पास डायरेक्ट लिंक्डइन से आ जाती है। तो having a very good profile, having a strong LinkedIn profile is very important, and keep posting जो भी हो तुम्हारे दिमाग में, जो भी तुमने किया, कुछ भी अचीव किया, इवन इफ इट्स द मिनिमम थिंग। इफ तुमने कोई सेशन अटेंड किया विच वाज वेरी इंसाइटफुल, टॉक अबाउट द सेशन एंड जस्ट पोस्ट अबाउट इट। एंड यू नेवर नो कि तो लिंक्डइन पे क्या चीज़ कभी तुम्हारी एल्गोरिथम ब्रेक कर दे। Like one of my snake games, the snake game that I had, the first game that I launched on Play Store, broke the LinkedIn algorithm, and it had 30,000 views. Suddenly went viral. So you never know what's gonna happen, and if you maintain like a record, if you post on LinkedIn, if जो भी प्रोजेक्ट पे काम किया, प्रोजेक्ट की डेमो वीडियो डाल दो, तुमने कुछ सेशन अटेंड किया तुम उसको डाल दो, तुम्हें कोई सर्टिंग मिला तुम उसे डाल दो, तुमने कोई मेंटोरशिप कंप्लीट करी तुम उसको डाल दो। मतलब कि बस लिंक्डइन पे एक्टिव रखो, जिससे कि जो बाकी लोग तुम्हारे नेटवर्क में, पीपल विल कनेक्ट विद यू व्हेन दे सी योर पोस्ट, एंड इफ देयर आर पीपल इन नेटवर्क एंड दे थिंक कि कोई अपॉर्चुनिटी तुम्हारे उसकी है, तो दे रेकमेंड यू और दे विल रीच आउट टू यू, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड ईयर में अराउंड 7-8 अपॉर्चुनिटीज़ जो मेरे पास आई थी, वो सारी लिंक्डइन के थ्रू थी, जो मैंने खुद से कॉन्टैक्ट नहीं किया था, मुझे किसी ना किसी ने भेजी थी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग हो, जिससे कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ सामने से आए। एंड तुम्हें लाइक ऑब्वियसली रिसर्च करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने क्लास ग्रुप्स पे एक्टिव रहो, लिंक्डइन कॉन्स्टेंटली चेक करो, ट्विटर पे चेक करो, देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ जो निकलती रहती हैं। बट एट द सेम टाइम इतना स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन हो कि तुम्हें लोग खुद से भेजें तो और भी अच्छा है। एंड इन द एंड it's all manageable, it can be done, and you can do it if you start on time and if you are fully dedicated to it. हो जाएगा, don't worry. And if you want me to do more such videos या कुछ भी questions है, do you want me to do a part 2 या फिर कुछ भी पूछना है, you can either DM me, the link is in my bio for my Instagram, or you can comment down below and I'll answer it. And if you want a part 2, you can tell your question, I can specifically answer those questions जो भी comments में होंगे. And yeah, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. Till then, goodbye.